اسلام آباد میں سنگجانی کے مقام پر تحریک انصاف کا جلسہ جاری ہے۔ کارکنوں رہنما جلسہ گاہ پہنچ گئے ہیں۔ مختلف رہنماؤں نے جلسے سے تقاریر بھی کی ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں آسیہ کوثر سے۔ آسیہ، چونکہ آپ جلسہ گاہ میں موجود ہیں، کہا جا رہا ہے کہ رکاوٹوں کے سبب لوگ جلسہ گاہ کا رخ نہیں کر رہے ہیں، آپ کیا وٹنس کر رہی ہیں؟ جلسہ گاہ میں اس وقت کتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں؟ جی بالکل، اس وقت ہم بات کریں کہ جلسہ گاہ کے اندر کتنی بڑی تعداد میں کارکنان موجود ہے تو ایک اندازے کے مطابق 20 سے 25 ہزار لوگ اس وقت جلسہ گاہ تک پہنچ چکے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آپ کو دکھائیں یہ تمام تر صورتحال، کیونکہ بالکل سٹیج کے سامنے والے کنٹینر موجود ہے اور جلسہ گاہ کے مڈ پوائنٹ کے اوپر ہم موجود ہیں۔ اس وقت آپ کو ہمارے کیمرہ مین جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں انجم کے یہاں پر بڑی تعداد میں کارکنان موجود ہیں۔ چاروں اطراف ہر طرف ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے جو ہے وہ لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کارکنان ایک طرف ہمیں نعرے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو دوسری طرف ہاتھوں میں جو ہے وہ بینرز اور پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں۔ وقتاً فوقتاً رہنماؤں کی جانب سے انہیں موبائل فون کی لائٹس آن کرنے کا بھی کہا جاتا ہے، ہاتھ ہلانے کا بھی کہا جاتا ہے، جس پر باقاعدہ طور پر کارکنان جو ہے وہ رسپونڈ کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت ہم سنگجانی کے مقام پر موجود ہیں، جس کو اگر ہم راستوں کی بات کریں تو ایک طرف سے پشاور روڈ جو جی ٹی روڈ سے کنیکٹ ہو کر یہاں پر کنیکٹ ہوتا ہے، پشاور سے آنے والے لوگ بھی اسی راستے سے آ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی کے چاروں طرف سے راستے جو ہیں وہ اس مقام کو ٹچ کرتے ہیں۔ مارگلا ایونیو کے اوپر کنٹینرز لگائے گئے تھے جن کو کارکنان نے اپنی مدد آپ کے تحت ہٹا کر ان رکاوٹوں کو آسیہ، مزید ایسے کون سے علاقے ہیں جہاں سے کارکنان نے کنٹینرز کو ہٹایا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو مارگلا ایونیو جو کہ اسلام آباد کا ایگزٹ اور انٹری پوائنٹ ہے جو نیا روڈ بنایا گیا ہے، اس کے اوپر کنٹینرز لگائے گئے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ راستہ دیا جائے گا، لیکن کنٹینرز لگا کر راستہ بند کیا گیا تھا، وہاں سے کنٹینرز ہٹائے گئے۔ اس کے علاوہ 26 نمبر چونگی پر سے جو ہے وہ کنٹینرز ہٹائے گئے۔ ہر وہ جگہ جہاں پر کنٹینرز کی وجہ سے کارکنان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جلسہ گاہ میں پہنچنے کے لیے رکاوٹیں تھی، وہاں سے کنٹینرز کارکنان نے اپنی مدد کے تحت ہٹائے ہیں۔ ابھی اس وقت جو ہے وہ جلسہ گاہ میں انتظار کیا جا رہا ہے علی امین گڈھا پور کا کہ کب وہ جلسہ گاہ میں پہنچیں گے اور کب کارکنان کے ساتھ خطاب کریں گے۔ اگر ہم دیگر رہنماؤں کی بات کریں تو عالیہ حمزہ، راجہ علامہ، ناصر عباس صاحب اور ساتھ ہی ساتھ علی محمد اور پاکستان تحریک انصاف کے حماد اظہر دیگر سمیت جتنے بھی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت رہنما موجود تھے وہ جو ہے وہ کارکنان کے ساتھ خطاب کر چکے ہیں۔ فیصل جاوید جو ہے وہ اسٹیٹ سیکرٹری کا کردار آج بھی نبھا رہے ہیں اور عوام کو جو ہے وہ ایک جوش اور ولولہ۔ اچھا آسیہ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو مرکزی قائدین ہیں وہ بھی جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں اور کچھ رہنما تقاریر کر چکے ہیں، کچھ رہنما کی جانب سے خطاب بھی ابھی کیے جانے کا امکان ہے۔ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، وہ کب تک پہنچ رہے ہیں؟ بیکاز ان کا ایک اسٹیٹمنٹ منظر عام پر آیا تھا کہ چاروں اطراف سے کنٹینرز لگا کر رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ جی دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ چاروں اطراف سے کنٹینرز لگا کر نہ صرف رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں بلکہ ہر ممکن کوشش یہ کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جلسہ گاہ تک نہ پہنچ سکے۔ جب این او سی دے دیا گیا تھا تو اس کے بعد اتنی بڑی تعداد میں کنٹینرز لگانے کا اور راستہ بلاک کرنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ باقاعدہ این او سی کے بعد یہ جلسہ جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بہرحال اس کے باوجود کارکنان ہمیں یہاں پر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر بھی اب سے کچھ دیر میں جو ہے وہ یہاں پر پہنچ جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ علی امین گڈھا پور کا بڑی بے صبری سے اسٹیج کے اوپر انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ جلد از جلد اسٹیج پر پہنچے اور کارکنان کے ساتھ خطاب کریں۔ اگر ہم بات کریں مختلف راستوں کی تو پشاور سے آنے والے راستے کے میں بھی کنٹینر لگائے گئے، اسلام آباد سے باہر آنے والے راستے اور اندر جانے والے راستے دونوں اطراف میں جو ہے وہ کنٹینرز لگائے گئے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جس پوائنٹ کے اوپر اس وقت سنگجانی جس مقام کے اوپر میں کھڑی ہوں، اسی کے لیفٹ سائڈ پر جو ہے وہ مارگلا ایونیو ہے، یہ وہ روڈ ہے جو اسلام آباد سے باہر ایگزیکٹ پوائنٹ کے پاس آتی ہے۔ ریڈ زون تو مکمل سیل کیا جا چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اچھا آسیہ، آپ نے بتایا کہ 20 سے 25 ہزار لوگ اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہیں، آپ کی لوگوں سے بات ہوئی ہے، کیا کہنا ہے، کتنے پرجوش ہیں وہ؟ دیکھیں، لوگ یہاں پر ہمیں کافی زیادہ پرجوش نظر آ رہے ہیں اور ان کا ایک ہی موٹیو اور ایک ہی نقطہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چوری کے مینڈیٹ کو جو ہے وہ ہٹایا جائے۔ چوری شدہ مینڈیٹ کے بعد یہ حکومت اقتدار میں آئی اور اس کے بعد ایک مہنگائی کا طوفان آیا ہے۔ سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فارم 47 سے آنے والی حکومت جو کہ کارکنان کا کہنا ہے کہ یہ حکومت فارم 47 سے آئی ہے، اس کو ہٹانے کا یہاں پر مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ عوام اور کارکنان ہمیں اس قدر پرجوش نظر آ رہے ہیں کہ انہیں لگ رہا ہے کہ شاید آج اس کے جلسے کے بعد اگلی دوبارہ سے ایک الیکشن کا انعقاد ہوگا اور شاید اس جلسے کا اتنا بڑا امپیکٹ ہوگا کہ دوبارہ الیکشن ہوں گے اور دوبارہ سے جب الیکشن ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی۔ بہرحال ایسا ہوتا تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم اوور آل بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے پاور شو کی تو یہ یقینی طور پر ایک پاور شو
जो है वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिखाया गया है और कारकुनान इस बात का सबूत देते हुए हमें नजर आ रहे हैं कि जितनी मर्जी बड़ी रुकावटें खड़ी कर ली जाए, पुलिस इंतजामिया के 7,000 से जायद एहलकार जो है वो इस जलसे के लिए तैनात किए गए थे। 7,000 पुलिस एहलकार और दर्जनों के और लाखों के हिसाब से लगाए गए कंटेनर्स भी जो है वो कारकुनान का रास्ता नहीं रोक सके। जलसागाह की तरफ आने वाला हर रास्ता, हर मुमकिन कोशिश की गई है कि मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए और लोग जलसागाह तक ना पहुंच सके, लेकिन उसके बावजूद लोग कंटेनर्स को, रुकावटों को अबूर करते हुए इस वक्त जलसागाह में पहुंच चुके हैं। हमारे कैमरामैन अंजुम एक दफा फिर से आपको दिखाएंगे कि कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान इस वक्त मौजूद है। जिस कंटेनर के हम ऊपर थे, इस कंटेनर से लेकर जो सेंट्रल कंटेनर है जो जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खड़े हैं, यहाँ पर तकरीबन 1 किलोमीटर का जो है वो रास्ता बनता है और इसमें खचाखच ये जो अवाम है भरी हुई है। कारकुनान स्टेज के ऊपर भी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद है और हम चूंकि सेंटर में मौजूद है तो चारों अतराफ जो है हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे नजर आ रहे हैं। स्टेज आपने देखा और इस वक्त मोबाइल की लाइट चूंकि ऑन की जा चुकी है तो उसके बाद शायद ये मंजर वाजे हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दिन के औकात में चूंकि मोबाइल लाइट्स का या फ्लैश लाइट्स का इस्तेमाल करके उस तरह से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जा रही है तो मोबाइल की लाइट्स ऑन करके कारकुनान अपने यहाँ मौजूदगी का जो है वो एहसास भी दिला रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो कितने पुरजोश हैं और इस हुकूमत के खिलाफ जो एहतजाज जो जलसा आज किया जा रहा था, यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये पावर शो हमें कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। शायद ये रुकावटें ना होती तो जितनी तादाद में कारकुनान इस वक्त यहाँ मौजूद है, इससे ज्यादा बड़ी तादाद में कारकुनान हमें यहाँ पर नजर आते हैं। चूंकि मैन जीटी रोड लग रही है, इधर से हम जीटी रोड तक देखें तो वहाँ जीटी रोड के ऊपर भी इस वक्त लोग मौजूद हैं। लेफ्ट साइड पे मेरे मार्गला एवेन्यू आता है, मार्गला एवेन्यू पर भी लोग मौजूद हैं और ये संजानी का वो मकाम है जहाँ पर मुआशी मंडी लगाई की जाती है अमूमी तौर पर और यहाँ के लिए इन्हें बाकायदा तौर पर एनओसी दिया गया था। ठीक है आसिया, हम बिल्कुल देख सकते हैं विश्वस में कि कारकुनान का एक जमे गफीर वहाँ पर मौजूद है। ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर कब तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि उन्हें खिताब भी करना है और डेफिनेटली वो कारकुनान का लहू भी गरमाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही अली अमीन गंडापुर का जो है वो इस वक्त स्टेज पर बैठे हुए लोगों को भी बेसब्री से इंतजार है कि जल्द से जल्द अली अमीन गंडापुर जो है वो स्टेज के ऊपर पहुंचे और कारकुनान के साथ खिताब करें, क्योंकि उनका जो अंदाज बयां है उससे भी लोग काफी ज्यादा मुतासिर होते हैं। और अगर हम बात करें ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तो सीनियर क़यादत में से इस वक्त कोई हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बड़े नाम नजर नहीं आए जो अमूमी तौर पर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में नजर आया करते थे, जैसे शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शेख रशीद। ये लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में रहे नहीं, तो अब जो दीगर क़यादत थी वो यहाँ पर इस वक्त हमें मौजूद नजर आ रही है, लेकिन शायद उनकी तकारीर में वो मोटिवेशन नहीं है, वो जज्बा नहीं है जो अवाम के लोगों को गरमा सके और उन्हें वो जोश दिला सके। तो इसलिए बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि अब से 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर जो है वो अली अमीन गंडापुर जलसागाह पहुंच जाएंगे और उसके बाद कारकुनान के साथ खिताब करेंगे। लोगों की बहुत बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद है और जैसा कि आप बता रही हैं कि लोग जोक दर जोक जलसागाह का रुख कर रहे हैं, हिफाजती इंतजाम कैसे किए गए हैं? देखिए हिफाजती इंतजाम तो सिर्फ इंतजामिया की जानिब से ये किए गए हैं कि कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं। जैसे अमूमी तौर पर हम जलसागाहों में देखते हैं कि पुलिस की भारी नफरी जलसागाह के इर्द गिर्द तैनात हमें नजर आती है, वो सूरत हाल हमें यहाँ पर खातर हुआ नजर नहीं आई। इस वक्त भी जितनी भी फुटेज आपको मेरे कैमरामैन अंजुम ने दिखाई उसमें आपको कहीं कोई पुलिस एहलकार बाकायदा तौर पर नजर नहीं आया होगा। मेरे अकब में जो है वो खवातीन के लिए एक जगह बनाई गई है, उसके अंदर जो है वो वॉक थ्रू गेट लगाएंगे, वहां से गुजरने के बाद जो है वो लोग अंदर एंटर होते हैं। लेकिन इसके अलावा किसी जलसागाह में किसी भी जगह पर ना तो कोई वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं एंट्री के लिए, ना ही कोई खारदार तारे लगाकर जो है वो महफूज बनाया गया है और इस तरह का खातर हम अगर कहें कि चेक एंड बैलेंस है तो ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस या पुलिस की भारी नफरी हमें ओवरऑल इस्लामाबाद के रास्ते बंद करने में तो नजर आती है। लेकिन जलसागाह की हिफाजत की अगर बात करें तो उसकी हिफाजत की तैनाती के लिए हमें कोई पुलिस एहलकार या कोई पुलिस का अफसर यहाँ पर हमें खातरख्वाह नजर नहीं आ रहा। हालांकि होना ये चाहिए था कि जलसागाह के अंदर पुलिस की भारी नफरी मौजूद होती, साथ ही साथ पुलिस के अफसरान और इंतजामिया के लोग भी मौजूद होते, बम डिस्पोजेबल स्क्वाड भी मौजूद होता और जलसा इस पूरे जलसे को जो है वो एक बेहतरीन सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन शायद इंतजामिया यानी कि इतना बड़ा जलसा है, इतने लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन सिक्योरिटी के इंतजामात पर सवालिया निशान है, सिक्योरिटी इंतजामात काफी नाकिस हैं। आसिया हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत के लिए WT इंटरचेंज से दिन भर काफिलों की आमद का सिलसिला जारी रहा है और अभी कुछ इतलात आ रही है कि वहां पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। तो आसिया, जैसा कि आप बता रही थी कि जौक दर जौक लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पंजाब की जो मरकजी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहां से कौन कौन से रहनुमा पहुंचे हैं एक्सेप्ट हमाद अजहर?
देखिए फिलहाल तो हमारे नजर का काफिला पहुंचे, उसके अलावा जो पंजाब की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यूथ के सदर हैं और जो दीगर रहनुमा हैं वो काफिलों की सूरत में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आज हमें जो है वो पंजाब, KPK, बलोचिस्तान या सिंध नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर सिर्फ हमें आज पाकिस्तान की आवाम नजर आ रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे में शरीक हुई है और जिनका एक ही मुतालबा है कि इस चोरी के मैंडेट को खत्म किया जाए और इस चोरी के मैंडेट की हुकूमत को खत्म किया जाए। साथ ही साथ साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई का मुतालबा लेकर यहाँ पर अवाम जो है वो इकट्ठी हुई है। बेसिकली अगर बात की जाए तो ये जितनी भी अवाम आज यहाँ पर इकट्ठी हुई है ये सिर्फ बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर शरीक हुए हैं। स्टेज के ऊपर से भी बारहा ये आवाजें जो है वो लगाई जाती रही कि पंजाब बिल्कुल आसिया, हमें भी आवाजें नारों की सुनाई दे रही हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त आप जलसागाह में मौजूद हैं, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रही हैं और ताज़ा तरीन क्या मनाजिर हैं इस वक्त? जी ताज़ा तरीन सूरत हाल की अगर हम बात करें तो इस वक्त चूंकि सूरज ढलता हुआ हमें नजर आ रहा है, लोगों की मोबाइल फ्लैश लाइट्स जो है वो ऑन हो चुकी हैं और हर शख्स ये कोशिश कर रहा है कि वो उस जलसे में जहां पर शरीक हुआ है वहीं पर अपनी जो है वो हाजिरी को भी यकीनी बनाए। जब स्टेज से ये आवाज लगाई जाती है कि मोबाइल की फ्लैश लाइट्स ऑन करें तो उसके बाद पूरे जलसागाह में जो है वो हर तरफ हमें मोबाइल की लाइट्स नजर आती हैं। काफिले जो है वो जोगदा चोर इस जलसे में शरीक होते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ रहनुमा जो है वो अपने साथ बड़ी तादाद में काफिले लेकर आ रहे हैं। उसके अलावा भी जो है लोग खुद भी काफिलों की सूरत में जलसे में शरीक हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं अपने लेफ्ट साइड से तो मारगला एवेन्यू जो कि यहाँ पर आकर खत्म होता है संजानी के पास, वहां पर इस वक्त भी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इन कच्चे रास्तों से होते हुए, क्योंकि मेन रोड से आना जरा मुश्किल है, कंटेनर्स लगाए गए, रास्ते बंद किए गए, तो जो दरमियान से पहाड़ियों को काट के कच्चा रास्ता है उन कच्चे रास्तों से हमें लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें GT रोड की, इस वक्त मेरे सामने जो है वो बिल्कुल GT रोड है। GT रोड तक अगर आपकी नजर जाए तो वहां पर आपको अवाम ही अवाम नजर आएगी, कारकुनान ही कारकुनान नजर आएंगे। GT रोड से भी कारकुनान जो है वो यहाँ पर शामिल होते नजर आ रहे हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, KPK हर जगह से जो है वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस जलसा ठीक है आसिया, ये बताइएगा कि बड़ी शराइत के बाद ये जलसा करने की इजाज़त मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। गालिबन 41 शराइत NOC के साथ लगाई गई थी और 7 बजे का ही वक्त है कि जलसा वाइंड अप करना है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। फिर अली अमीन गंडापुर हो, उन्होंने भी खिताब करना है, तो क्या ये जलसा आपको 7 बजे तक वाइंड अप होता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए 7 बजे तक तो ये जलसा किसी सूरत में वाइंड अप नहीं हो सकता, क्योंकि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर रहनुमाओं में जिनमें अली अमीन गंडापुर भी शामिल है, बैरिस्टर गोहर भी शामिल है, उनका भी जलसागाह में पहुंचना बाकी है। जब वो पहुंचेंगे उसके बाद उनकी तकारीर होंगी और उसके बाद जो है वो यहाँ से जलसा जब खत्म करने का ऐलान किया जाएगा तो उसके बाद ही जो है वो जलसागाह खाली हो सकेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए बाकायदा तौर पर NOC लिया, जो कुछ शराइत के साथ उन्हें NOC जारी किया गया, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसों को इंतजामिया की जानिब से और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी दी जानी चाहिए थी, वो सिक्योरिटी तो हमें नजर नहीं है। अलबत्ता रुकावटें डालकर जो है वो रास्ते बंद करके कारकुनान को, रहनुमाओं को यहाँ पहुंचने से रोकने के लिए हर मुमकिन जो है वो इकदाम इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से और इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से किए गए, जिसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफी सारे कारकुनान ताहाल जलसे में नहीं पहुंच सके, बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे वो भी अभी तक जलसे में नहीं पहुंच सके। तो जब तक सारी क़यादत नहीं पहुंच जाती और सारी क़यादत की तकारीर नहीं हो सकती तब तक यकीनी तौर पर जो है वो जलसा खत्म नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि इंतजामिया जो है वो इस हवाले से अगली क्या स्ट्रेटेजी बनाएगी, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से 4 से 7 बजे तक का जो है वो जलसे का टाइम दिया गया था और बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की इंस्ट्रक्शंस जो है वो DC इस्लामाबाद की जानिब से जारी की गई थी कि जलसा जो है वो 7 बजे खत्म हो जाना चाहिए, अगर नहीं जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब उस कानूनी कार्रवाई के लिए तो यकीनी तौर पर इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ इस्लामाबाद इंतजामिया भी तैयार होगी, लेकिन बहरहाल जलसा जो है वो 7 बजे हमें खत्म होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि क़यादत आएगी, तकारीर करेगी और उसके बाद ही ये जलसा। ठीक है आसिया, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा।